Welcome to Zen Study. We are meeting after some time. So I hope all of you must be doing great. Today we will basically be discussing about a very important scheme, that is the Swachh Bharat Mission or the Swachh Bharat Abhiyan. And recently, like in 2024, that is on 2nd October, this Swachh Bharat Mission is going to cover its 10 years. It's going to complete 10 years of its launching. So it becomes very important this year for this year's mains exam. Like if you're appearing for your 2024 mains exams, UPSC, so this scheme kind of becomes very important. Again, from the perspective that it is completing 10 years. Apart from that, in the recent, there is a journal called Nature. So it has mentioned some of its some of its beautiful aspects. What were the reasons why this scheme has been so successfully implemented? And so today we will basically be discussing all about the Swachh Bharat Mission, how it was implemented, when it was implemented, and what are the reasons behind all the success stories. So let's start today's lecture. Coming to the facts, basically, in 2018, एक महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 55 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था. It was held in Delhi. And it was presided over by our Prime Minister PM Modi, along with the UN General at that time. And उसमें हमें एक फाइंडिंग पता चली थी that उस टाइम के जो नाइजीरिया के वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर थे, उनको जब इस स्कीम के बारे में पता चला, उनको जब इसकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में पता चला, ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट वो वापस नाइजीरिया जाके उन्होंने क्लीन नाइजीरिया मिशन जो है वो लॉन्च करवाया था अपने कंट्री में. सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्कीम इज सो इम्पॉर्टेंट, द सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स, and what are the takeaways, like what are the basic reasons जिस वजह से ये इतना successful हो पाया. So coming to the basic facts related to this mission, 11 crore individual household toilets were built. स्वच्छ भारत मिशन, it was basically about कि हम किस तरीके से इंडिया को जो है ओपन डेफिकेशन फ्री करवा पाएंगे, दैट इज जो लोग बाहर शौच करते हैं उसको हम रोक पाएंगे. एंड उसके तहत एक ड्राइव चलाई गई थी, एक मुहिम चलाई गई थी, जिससे जो हाउस होल्ड टॉयलेट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था. So in that 11 crores अब तक का जो डेटा है, 11 crores individual toilets have been built, and it has been expected that 60 to 70,000 infant deaths जो है वो avert किए जा पाए हैं because of the construction of these toilets. So how is the death, like किस तरीके से हमने बच्चों के डेथ को अवर्ट किया है, इसका क्या रिलेशनशिप है from the building of toilets? So we will get to know about that. So you have to understand that open defecation जो होता है वो एक potent source होता है of waterborne diseases. Waterborne diseases such as diarrhea, cholera and typhoid, ये जो है ये spread करते हैं if there is a predominance of open defecation, because when it rains or if there is any kind of seepage, so ये जो waste है या ये जो गंदगी है ये जाके accumulate हो जाता है जो local water bodies होते हैं उसमें. एंड एज यू नो दैट जो रूरल एरिया होता है वहां पर जो सोर्स ऑफ वाटर कंजम्पशन का जो सोर्स होता है वो मेनली पॉन्ड्स, लेक्स एंड वेल्स ही होते हैं. ट्यूब वेल्स आर देयर, बट अगेन ट्यूब वेल्स में भी अगर जो वेस्ट होता है विथ द रेन वाटर वो सीप इन करता है थ्रू द सॉइल्स, and again the bacteria or again any kind of microorganism, it keeps on accumulating underground. So वो water table जो है उसको भी infect करता है. So this was the reason कि किस तरीके से टॉयलेट्स का जो टॉयलेट्स जो बिल्ड कर पाए थे हम, उससे हमने ओपन डेफिकेशन को काउंटर किया.
एंड जो चाइल्ड मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी जो है, इसको हमने काफी हद तक कम किया था। बिकॉज जो मैल अब्सॉर्प्शन होता है, ये जो वाटरबोर्न डिजीजेस होते हैं, हम वो गंदा पानी कंज्यूम करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मैल अब्सॉर्ब करते हैं। लाइक आवर बॉडी विल अब्सॉर्ब ऑल द अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग, सो इट लीड्स टू वेरियस health hazards and various water related disease. And as you know that छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही मतलब उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत वीक होती है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड इन वाटरबोर्न डिजीज से छोटे बच्चे ही होते हैं। And also pregnant ladies or ladies who are in that reproductive age. According to the NFHS data, we have been able to find out that 2005-6 से 2015-16 का जो ट्रेंड है उसमें households with no toilet facility has fallen down from 55% to 39%. That is 5-6 में 55% था like houses with no household toilet facilities. 2015-16 में ये 39% हो गया था। बट 2019-20 में हमने आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम 2014 से 19 में हमने एक ड्रास्टिक डिक्रीज देखी थी, जिससे 2019-20 में दैट नंबर केम डाउन टू फ्रॉम 55 to 19%. And at present, the official claim is that India has become 100% ODF, that is 100% open defecation free. But in practicality, it's not possible. There are some lacunas, so we can't completely claim that. बट फ्रॉम द नंबर जिस तरीके से जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट डिक्रीज की गई है, लाइक रेट डिक्रीज हुई है, इससे हम डेफिनेटली एक जायजा, एक अनुमान लगा सकते हैं दैट जो हमारा जो SBM है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसका काफी हद तक एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। Next, we come to like how was the scheme implemented? What were the steps that the scheme followed? जिसके वजह से ये इतना सक्सेसफुल हो पाया है। And हम क्यों पढ़ रहे हैं इस स्कीम के बारे में currently? As I told you that 2 अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था। So 2024 में 2 अक्टूबर 2024 में it's going to complete 10 years. So from your mains perspective, like current affairs के perspective से भी important है। एंड सेकेंडली ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम है ऑफ द प्रेजेंट जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी। सो 2014 में जब ये स्कीम लाया गया था, इट वाज अ रेवोल्यूशन इन इट्स सेल्फ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम किसी पीएम ने या किसी गवर्नमेंट ने इस स्वच्छता सैनिटेशन के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस दिया, इसके बारे में समझा एंड ये इन द फॉर्म ऑफ स्कीम लेकर आए। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट, ताकि इसके जो टेक अवेज हैं हम ले सके, हम इससे जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं उसके बारे में हम पता कर सके एंड वी कैन मेक श्योर दैट अपकमिंग स्कीम्स या पॉलिसीज जो भी हम लाएंगे वो इसी बेसिस पर डेवलप की जाएंगी कि किस तरीके से हम हमारे जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा सके। सो बेसिकली लाइक इट स्टार्टेड एज कि सबसे पहले जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि अर्बन एरियाज के लिए था, एंड दिस वाज डेल्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। The next component was SBM rural, that is for the it's also known as SBM Gramin for the rural areas or the villages, and this was led by Ministry of Drinking Water and Sanitation. So why was this ministry involved? Because आपने देखा है that हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो वेस्ट होता है, द ह्यूमन फीसीज जो होता है, ये इवेंचुअली जाके मिल जाता है सॉइल के साथ एज वेल एज द लोकल वाटर बॉडीज जो होते हैं। सो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो कंट्रोल है, वो इसी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है उनको दिया गया था। सो दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट कि इसको पहले तो जो ये स्कीम है इसको रूरल और अर्बन में अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डील करेगी अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके।
Next was that there was a proper target setting and a deadline was set कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम सबसे पहले काउंटर करेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे, कितने टॉयलेट्स हम बनाएंगे. एक अचीवेबल टारगेट सेट किया गया था बेस्ड ऑन डिफरेंट ब्लॉक्स एंड डिफरेंट मंडल्स. सो दैट इज वाई इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो स्मूथ हो सका एंड काफी बिकॉज अचीवेबल टारगेट्स वर सेट. सो लाइक इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस फेजेस. 2014 से लेकर 2016 तक, देन 2016 से लेके 2018 तक. सो इट वाज डिवाइडेड इन दोज फेज कि इतने दिन का हम टारगेट्स रख रहे हैं और इतने दिन के टारगेट्स में हम कितने टॉयलेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. सो अचीवेबल टारगेट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो प्लान है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि आप वो अपने जो टारगेट्स हैं वो मीट कर सके. नेक्स्ट वाज अवेयरनेस कैंपेन्स जिस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था एंड द गवर्नमेंट मेड श्योर कि वो सेलिब्रिटीज का हेल्प ले सके इसमें, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका हेल्प ले सके. इफ यू रिमेंबर जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, सो द देन प्राइम मिनिस्टर, दैट ही इज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर एज वेल, पीएम मोदी जो है उन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को टैग किया था दैट प्लीज आप अपने अपने एरिया में थ्रू योर अपने जो नेटवर्क है, थ्रू योर फैन फॉलोइंग जो बेस है आपकी, आप उनको अप्रोच करें और आप जो SBM या जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है इसके बारे में लोगों में एक काइंड ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करें. सो वेरियस लाइक टैगलाइंस एंड स्लोगन्स केम अप, सच एज वन ऑफ देम वाज स्वच्छता ही सेवा. लाइक अगर इट वाज मेनली काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग द इंटेलेक्ट ऑफ द कॉमन पीपल दैट अगर आप एक डेडिकेटेड सिटीजन है देन स्वच्छता ही सेवा है. लाइक दिस इज हाउ यू कैन शो योर पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स योर कंट्री बाय बीइंग like you by following hygiene, by keeping your environment and your household clean. So that was one of the thing. Next thing about creating awareness was that if you remember that there was a very famous movie called टॉयलेट, एक प्रेम कथा बाय अक्षय कुमार एंड आई थिंक भूमि पेडकर नाम है उनका जो एक्ट्रेस हैं. सो लाइक इस तरीके से मतलब जो ह्यूमन की जो इंटेलेक्ट है, ह्यूमन एक काइंड ऑफ इमोशंस को टच करने वाला एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया सो दैट पीपल फील मोर connected to it. This scheme also it was more about women empowerment and also providing a security and prestige to women. The question always came up that you are asking your women to go out in the fields and defecate, जबकि वो like if you are providing security, अगर आप उनको security provide करना चाहते हैं तो you should make sure that she has a toilet का access अपने ही घर पर. सो जो जिस तरीके से वेरियस हेजिटेशन थी लोगों को उसको ब्रेक करने के लिए अगेन ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन इंटेलेक्ट को टारगेट किया गया था सो दैट दिस अवेयरनेस कैन बी इनकलकेटेड एंड दिस अवेयरनेस कैन बी डीप रूटेड. The next step that was taken was about community इन्वॉल्वमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो आपकी कम्युनिटी है उसको साथ लेकर चले. आपने अवेयरनेस क्रिएट करा दी, अब आप उन्हें ही टारगेट्स दें, आप उन्हें ही सशक्त बनाए कि अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो खुद पार्ट ले सके. तो इसको बनाने के लिए क्या किया गया, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थी, जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थी, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि यू टेक पार्ट इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टॉयलेट्स. सो उनका जो SHG अकाउंट था उसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया गया. एंड ऑल्सो दिस ऑल्सो काइंड ऑफ गेव अ बूस्ट टू विमेन एम्पावरमेंट सो दैट विमेन कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टास्क. इसको मैनेज कर सके कंस्ट्रक्शन को अपने विलेजेस में, अपने घरों में. एंड ऑल्सो दे कैन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लाइक दे विल बी डीलिंग विथ वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स, दे विल बी डीलिंग विथ वेरियस मेसन्स. सो किस तरीके से वो अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बनाकर इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में अपना जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन या भागीदारी दे सके. Then there were various grassroots workers who were called
स्वच्छग्रहीज, इनको मोबिलाइज किया गया. स्वच्छग्रहीज केम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. They were from like most of them were from the vulnerable caste. So again this स्वच्छग्रही जो है इनको एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया कि वो लोगों में अवेयरनेस फैला सके, लोगों में एक जो टॉयलेट का जो लाइक ओपन डेफिकेशन के जो इश्यूज हैं इसके बारे में बात कर सके. सो अगेन लाइक एवरी टाइम trying to inculcate the community in this implementation. Next was that a lot of focus was given on the construction of the toilets and the infrastructure. सबसे ज्यादा issue जो arise होते थे that was about the availability of water, because if you have toilets at home you have to flush it, so you have to आपके पास tap water की availability नहीं होती है. लोग जो है पानी भर के किसी local body से मतलब local water body से लेकर आते हैं. And again the water availability की जो crisis थी उसको मीट करने के लिए जो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन था उसको काफी साइंटिफिक रखा गया. इट वाज बेसिकली इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि दैट टू टैंक्स वर, टू सेपरेट चेम्बर्स और टू सेपरेट टैंक्स वर क्रिएटेड अंडरग्राउंड. एंड इट अगर जब भी एक टैंक भर जाएगा फ्रॉम लाइक अगर वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं, सो आफ्टर वन ऑफ द टैंक गेट्स फिल्ड, टैंक फिल होने में अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 years लेते थे. सो 2 to 5 years में जब वो टैंक भर जाएगा, सो यू चेंज द वाल्व एंड नाउ द वेस्ट विल अक्यूमुलेट इन अनदर टैंक. और जब तक वो टैंक भरता है तब तक जो प्रीवियस टैंक में वेस्ट एक्यूमुलेट हुआ था वो जितने भी आपके जो फीसीज थे या जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स थे, वेस्ट मटेरियल थे, वो डिकम्पोज हो जाएगा. बट उसके डिकम्पोजिशन में इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ हेल्थ हैजर्ड. ऐसा नहीं है कि उसके जो डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट है वो आसपास की जो आपकी सॉइल है उसको खराब करेंगे. वेरी गुड हेल्दी बैक्टीरियाज वर यूज्ड सो दैट जो एक कंटामिनेशन का जो एस्पेक्ट है उसको भी हम किसी हद तक लाइक वी कैन कंट्रोल इट, ताकि ऐसा ना हो कि डिकम्पोजिशन में आसपास की का जो एरिया है वो कंटामिनेट हो जाए. सो अ वेरी सिस्टमैटिक एंड अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच वाज टेकन केयर ऑफ while construction of the toilets and making sure that the infrastructure is well developed. Next is about monitoring and evaluation. अब तक टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हो गए. नाउ केम द स्टेप्स कि कितने लोगों ने टॉयलेट्स बनाया. सो इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम एक डेवलप की गई जिसको हम स्वच्छ सर्वेक्षण कह रहे हैं. दे वर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सोशल ऑडिट्स जिसमें वेरियस एजेंसीज के लोग जाकर चेक करते हैं कि कितना मतलब जो डायमेंशंस है वो फॉलो किया गया है कि नहीं, जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टमिक क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं कंस्ट्रक्शन में. सो अगेन एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम लाइक उसको डेवलप किया गया इन द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी, ताकि द कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी कि हम कंस्ट्रक्ट कर दें, उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने का काम उतना ही जरूरी है. देन केम the next step was about incentives and recognition. जो good actions थे, जो कुछ SHGs जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है या कुछ individuals जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, जो स्वच्छग्रहीज थे, they were given targets कि आप कितने families को मीट कर रहे हैं, आप कितने localities को मीट कर रहे हैं, like अपने जो आपको टारगेट्स सेट किए गए थे उसमें. So they were given certain awards जिसको स्वच्छ भारत अवार्ड्स के नाम से हम जानते हैं. इट वाज बेसिकली एक फॉर्म ऑफ इंसेंटिव देना उनको, एक फॉर्म ऑफ रिकग्निशन देना, एक वैलिडेशन देना, सो दैट दे फील मोर इनकरेज्ड टू टेक अप फर्दर लीडरशिप रोल्स इन फ्यूचर. Also, as for Manrega, some free toilets were also provided. Basically, एक lottery और token form of system से free form of some free toilets were provided, ताकि लोगों में एक उत्सुकता रहे, लोगों में एक जिज्ञासा kind of रहे, so that they can get a free toilet for themselves. Because this was a central government की scheme थी, but completely it was not funded by the government. कुछ पैसे जो है आपको खुद के घर से भी देना पड़ा था, so that एक accountability रहे लोगों में वो अपनापन रहे कि yes, I have also contributed, so this toilet or this entire like जो setup, it belongs to me. It is not completely the government's. It's not a public property. It is my private property, so I should use it. Next step that was very important
was about partnership, because the government realized that इस type के projects, because it was targeting the intellect of the people, it was about changing the lifestyle of the people. So the government realized कि वो अकेले नहीं कर पाएगा इस चीज को. They took help of NGOs, certain private entities जिन्होंने CSR के रूप में government को help की. Also there were international organizations such as World Bank जिसने कुछ funds जो है वो allocate किए थे इंडिया के लिए. So again like अकेले जो है अगर government चाहती तो शायद ये implement नहीं हो पाता. Complete responsibility अगर government की होती तो you can see how very prudently, very practically each and every stakeholder has been equally involved. So इन सारे जो भी हमने steps discuss किए, इसका नतीजा या इसका result ये निकला that by the end of 2019 India was declared ODF, that is open defecation free. All the households were not catered, but some public toilets were also created. अगर आपके घर पे अभी toilet नहीं बन पाया due to some reasons, so there were some public toilets created, community toilets, जिसमें you can go and rather than defecating in the open, you can use like you can access those toilets. So by 2019, India has officially been declared as ODF, that is open defecation free. Now our target is of SBM 2.0, Swachh Bharat Mission 2.0. This, the Swachh Bharat Mission 2.0 is basically about ODF plus, that is the sustainability of ODF. Open defecation free तो हो चुका है, but now we have to make sure that ये continued रहे, because yes, it was about changing the lifestyle of the people. People did not feel very comfortable in using the toilets, so we have to make sure that ये जो awareness है, ये जो हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड है ओपन डेफिकेशन के, इसके बारे में एक कांस्टेंट जो अवेयरनेस है, कांस्टेंट जो नॉलेज है वो इम्पार्ट होती रहे. इसके लिए अगेन टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स निकालती है गवर्नमेंट. टाइम टू टाइम आपके टीवी पर काफी टाइप के वीडियोस चलते हैं जो कि इसके बारे में लाइक स्वच्छता के बारे में जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं. सो currently we are under the SBM 2.0, that is we want to make this open defecation free sustainable. Okay. So the key takeaways that we take from the Swachh Bharat mission. So जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर 4 P's जो है इसके सक्सेस के पीछे जो 4 P's हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ. एंड ऑल्सो ये बहुत सक्सेसफुल इसलिए भी था क्योंकि जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो 6th पार्ट है लाइक SDG 6 जो है which talks about access to sanitation and clean water, so this comes under that. So that is why like World Bank and even the United Nations had supported India to the fullest, and they made sure that ये जो एक example set हुआ है इंडिया में for a developing country, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, but फिर भी we were able to implement this humongous task, this humongous scheme so successfully. So इसके लिए like it was a commendable thing. So what were the 4 key takeaways और किस वजह से ये commendable task हम achieve कर पाए उसके बारे में we will discuss. So the first thing is political leadership. Political leadership is basically एक political awareness. As you know that first time किसी PM ने इस तरीके से like people have been talking about cleanliness, people have been talking, but एक national level पर ऐसी एक scheme लाना जो कि directly relate कर पाए community के लोग and directly आप community के लोग जो है उसमें participate भी equally करें. So this was a very big thing, and this talks about the political prudence of the government. किस तरीके से government ने जो है वो उसने अपनी जो responsibility है एक like holding that important position and serving the citizens of the country, उसने उस responsibility को समझा and they kind of actually showed their leadership skills. Next was public financing. Public financing, like we were able to accumulate funds with the help of private entities in the form of CSR. Also, we were able to accumulate funds from the various international organizations, various like जो international capitalists हैं या international businessmen हैं, उन्होंने भी इसके लिए funds allocate किए थे.
एंड ऑल्सो द पीपल हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, जो लोग हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 100% जो फंड है वो गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, कुछ पैसे आपको अपने भी लगाने थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स। अगेन बिकॉज एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक ओनरशिप आएगा कि येस आई हैव पुट माई मनी इन दिस स्कीम, आई हैव पुट माई मनी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सेटअप, so like I should be using it. The next is about partnership. It was very prudent of the government कि उसने रियलाइज किया कि इतना बड़ा एक टास्क अकेले नहीं पॉसिबल है। सो हमें जो सिविल बॉडीज हैं या एनजीओज हैं या वेरियस प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटीज हैं उनका साथ लेके ही काम करना पड़ेगा। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग दैट पार्टनरशिप हैज ऑल्सो बीन टेकन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वॉज अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर रख लेते हैं, अगर आप लोगों का साथ अपने साथ ले लेते हैं, सो योर वर्क बिकम्स वेरी easy. So community and people's participation is one of the most key takeaways from this entire scheme. So I hope that you have been able to understand that how significant this topic becomes from your mains perspective. Apart from that, how significant this topic is from the perspective कि किस तरीके से कोई एक scheme इतना successful within a span of 10 years हो सकी है। सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।